गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाने वाली हूँ। उस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना और उसको समझना। Garbage in, garbage out. Every day we generate a lot of garbage or waste in our homes, schools, offices, shopping places, factories, hospitals, and other public places. We eat fruits like banana, mango, and throw their peels and seeds as waste. The cold drink bottles, disposable paper plates, and cups all contribute to garbage generation. You may have seen people throwing off their tickets when they get off from the bus. People even spit and urinate at public places and make them dirty. If all this waste piles up near our houses, lanes of schools, roadsides, etc., it will damage the beauty of our surroundings. Think of your school, how ugly it will look if you scatter packed food wrappers, tissue paper, aluminium foil, fruit peels, waste papers, used pens, etc. on its premises. Observe the sweeper who every day cleans your school compound and lanes. But it is not the duty of only one person to maintain the cleanliness of the surroundings. We all should contribute to keep our environment clean and garbage free. A dirty surrounding is the storehouse of many diseases causing germs. What is waste? Anything which becomes useless after its use is called waste. So we throw this waste in our dustbin. In our everyday life, we generate a variety of waste through our various activities. Some of the waste we throw directly in dustbins and some we keep separately to sell it to kabadiwala. For example, newspapers, old books, notebooks, plastic items, glass bottles, jars, broken metal items, etc. Types of waste. Waste can be classified into two different categories based on their degradation: biodegradable waste and non biodegradable waste. Biodegradable waste. The waste which degrades easily in the environment with the action of microorganisms is called biodegradable waste. The wastes like vegetable and fruit peels and their leftovers, fallen leaves, paper, cotton, and jute clothes are some examples of biodegradable waste. They do create environmental problems. Non-biodegradable waste. Some waste items which do not break down or degrade naturally the environment are called non-biodegradable wastes. Since they do not degrade, they accumulate on land and in water. For example, आप लोगों ने वीडियो देखा? यस मैम। अब मैं आप लोगों से वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उसके आंसर्स देना आप लोग। ओके मैम। वेयर वी जनरेट ए लॉट ऑफ गार्बेज? होम, स्कूल, ऑफिस, शॉपिंग प्लेसेस एंड अदर पब्लिक प्लेसेस। व्हाट कंट्रीब्यूट टू गार्बेज जनरेशन? Disposal paper, cans, metals, plastics and all contribute to garbage generation. वेरी गुड। 3. व्हाट द पीपल थ्रो गेट ऑफ फ्रॉम बस? People throw tickets when they get off from bus. वेरी गुड। What will be damaged if waste piles near our house? Beauty of our surroundings will be damaged. Good. Who cleans your school compound daily? Sweepers clean our school compounds daily. Very good. If the waste are divided into two parts, then what can we call these two parts? Types of wastes. Very good. आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ वेस्ट। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ टाइप्स ऑफ वेस्ट, जो कि आप लोग चार्ट के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगी।
जैसा कि आप लोग चार्ट में देख रहे हो, टाइप्स ऑफ वेस्ट। यहाँ पे क्या बताया गया है? टाइप्स ऑफ वेस्ट। वेस्ट जो होता है उसमें बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं, जिनका हमें कोई यूज नहीं होता है, वो होते हैं वेस्ट मटेरियल्स। जिसमें आता है पेपर, ग्लास, ऑर्गेनिक, प्लास्टिक। पेपर, ऐसा पेपर जो कि वेस्ट पेपर होता है, जिनका यूज नहीं होता है। ग्लास की बॉटल्स होती हैं और सारे मटेरियल्स होते हैं, वो होते हैं वेस्ट मटेरियल ग्लास के। ऑर्गेनिक, किचन से जो हमारे फूड पाइल्स निकलता है और सारे वेस्ट निकलते हैं, वो होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं या फिर प्लास्टिक के टॉयज होते हैं, वो जब टूट जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? हमारे वेस्ट मटेरियल्स में आ जाते हैं। तो हम इन वेस्ट मटेरियल्स को इकट्ठा रखते हैं, लेकिन इनको सेपरेट किया जाता है। क्यों? इनको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम सेपरेट करने के लिए पेपर वेस्ट को येलो डस्टबिन में डालते हैं और ग्लास वेस्ट को ब्लू डस्टबिन में डालते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को ग्रीन डस्टबिन में डालते हैं और प्लास्टिक वेस्ट को रेड डस्टबिन में डालते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इन वेस्ट में से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा वेस्ट जो कि पेपर वेस्ट होता है और ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। इसको हमने किस में डाला था? पेपर वेस्ट को हमने येलो डस्टबिन में डाला था और ऑर्गेनिक वेस्ट जो था उसको हमने ग्रीन डस्टबिन में डाला था। इसलिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होगा जिसको हमने येलो और ग्रीन डस्टबिन में डाला है, तो ये क्या हो जाएगा? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जिसमें कि ग्लास आता है और प्लास्टिक आता है, जिसको हमने ब्लू डस्टबिन में डाला था और रेड डस्टबिन में डाला था, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब मैं आपको करके बताऊंगी ब्लैक बोर्ड पे कि क्या होता है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि वेस्ट जो होता है टू टाइप्स का होता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब मैं बताऊंगी कि बायोडिग्रेडेबल में वेस्ट क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। जैसा कि आप लोगों ने चार्ट में देखा था, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कौन सा वेस्ट आता है? ऑर्गेनिक वेस्ट आता है जो कि हमारे किचन से निकलता है, और पेपर वेस्ट आता है, सीवेज वेस्ट आता है, मैन्योर वेस्ट आता है। ये सब किस में आता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में, जो कि मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख के बताऊंगी।
जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है किचन वेस्ट, सीवेज वेस्ट, मैन्योर वेस्ट, पेपर वेस्ट। ये सब किस में आता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसमें कि आता है ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कहते हैं। और इसको हम अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, इसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्यों कहते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा वेस्ट जिसको कि सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया जा सके नेचुरल एजेंट्स के थ्रू। नेचुरल एजेंट्स ऐसे एजेंट जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वाटर, रेन, सॉयल, एसिड रेन, यूवी रेन। ये सारे क्या होते हैं? नेचुरल एजेंट्स होते हैं जो कि वेस्ट जो होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसको जब हम कुछ टाइम के लिए सॉयल में ऐसे छोड़ देते हैं कुछ वीक्स या मंथ्स के लिए, तो हम कुछ दिनों बाद देखते हैं कि वहां पे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो सारा वेस्ट इन एजेंट्स के थ्रू या किसी बैक्टीरिया के थ्रू सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है और डिकम्पोज हो जाता है और सॉयल में मिक्स हो जाता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिट होता है। इसलिए हम बोलते हैं इसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और ये जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। इस प्रोसेस में जो वेस्ट होता है उसको हम सॉइल के नीचे ऐसे छोड़ देते हैं कुछ मंथ या वीक के लिए। उसके बाद हम उसको देखते हैं दोबारा तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है, वो डिकम्पोज हो चुका रहता है टोटली। तो ये प्रोसेस जो होती है वो होती है कंपोस्टिंग। और ये एग्जाम्पल होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में किचन वेस्ट, सी वेस्ट, मैन्योर वेस्ट और पेपर वेस्ट आते हैं। ये सारे हमारे नेचुरल एजेंट से डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसा वेस्ट जो कि हमारे नेचुरल एजेंट्स के थ्रू डिकम्पोज नहीं होता है, सिंपल मॉलिक्यूल में डिकम्पोज नहीं होता है, चाहे उसको हम कितने भी ईयर्स के लिए छोड़ दें। अगर वो डिकम्पोज होता भी है तो वो टॉक्सिक मटेरियल में होता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। इसमें जो ग्लास होता है, प्लास्टिक होता है, मेटल होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, इसको हम जब सॉइल में छोड़ते हैं तो इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है और ये डिकम्पोज भी नहीं होता है। इस पे किसी भी नेचुरल एजेंट का कोई भी रिएक्ट नहीं होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन मतलब नहीं, बायो मतलब कि एजेंट्स, नेचुरल एजेंट, डिग्रेडेबल मतलब ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और इसका एग्जांपल होता है ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत महंगी मशीनें चाहिए होती हैं और बहुत कॉस्टली होता है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये बेनिफिशियल नहीं होता है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिखाने वाली हूँ जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं और उसको वेस्ट की तरह फेंकते हैं डस्टबिन में। तो आप लोग बताना उसको देख के कि ये किस टाइप का वेस्ट है। ओके? यस मैम। ये कौन सा वेस्ट है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? वेस्ट पेपर। ओके। ये क्या है? पेंसिल के छिलके। इसको क्या बोलते हैं? ये भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ओके, वेरी गुड। ये क्या है?
पॉलीथीन ये किस में आता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। ओके, वेरी गुड। मैंने आप लोगों को जो डेली लाइफ के एग्जांपल्स के वेस्ट समझाए वो आप लोगों को समझ में आया? यस मैम। ओके, अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग उसके आंसर्स देना। How many types of waste? 2 types, biodegradable and non-biodegradable. Good. What is non-biodegradable waste? The waste which break down into simple molecules to decompose in the soil. Try again. मैंने आपसे पूछा है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? वो वेस्ट जो सॉइल में डिकम्पोज नहीं होता है उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल? प्लास्टिक, ग्लास। वेरी गुड। व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? जो सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होके सॉइल में डिसॉल्व हो जाता है उसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। वेरी गुड। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उसके आंसर देना। What is waste? Waste is an unwanted or undesired material. Very good. What factors are responsible for biodegradable waste? Water, acid rain, oxygen, UV rays, bacteria and other microorganisms. Very good. Give 2 examples of biodegradable waste. Paper and food peels. Very good. What is landfills? Low-lying open areas where garbage is thrown. Very good.
डिफाइन कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होता है? When we throw some waste in the soil and let it stay for a few days or weeks, they may not be found there anymore because the waste becomes dissolved and becomes part of soil. This process is called composting. वेरी गुड। What is recycling? The process by which waste material changes into useful materials. वेरी गुड। आज हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ वेस्ट के बारे में, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा वेस्ट जो कि नेचुरल एजेंट्स के थ्रू कुछ मंथ्स और वीक्स में सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यदि हम मतलब किसी वेस्ट को जो बायोडिग्रेडेबल होता है, जैसे कि पेपर, टिश्यू पेपर या फिर किचन के फूड के पेल्स, उसको हम कुछ दिनों के लिए सॉइल में छोड़ देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, वो सॉइल का ही पार्ट बन जाता है और उसमें एक मैन्योर के तरह मिक्स हो जाता है। तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं कंपोस्टिंग और इस एग्जाम्पल को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा वेस्ट जो कि नेचुरल एजेंट्स के थ्रू सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन नहीं होता है, उसका नेचुरल जो भी सब्सटेंस होता है जैसे कि एसिड रेन हुआ, यूवी रेज हुआ, इन सब से कोई रिएक्ट नहीं होता है और उसको अगर हम कुछ दिनों के लिए जैसे 100 मिलियन ईयर्स के लिए या फिर बहुत सारे दिनों के लिए छोड़ देते हैं सॉइल में, तो वो डिकम्पोज होता भी है तो वो टॉक्सिक मटेरियल में होता है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो आज आप लोगों ने पढ़ा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। आप लोगों को समझ में आया? Yes, ma'am. तो आज मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज दूंगी जो आप लोगों को घर से करके ले आना है। पहली एक्सरसाइज है आप लोग अपने नोटबुक में इसको राइट डाउन कर लो। अपने घर से आप लोगों को 2 लिस्ट बना के लेके आनी है ऐसे सब्सटेंस की जो कि रिसाइकिल किए जा सकते हैं और ऐसे सब्सटेंस की जो रिसाइकिल नहीं किए जा सकते हैं।